Controversy after the comment by Imam Bukhari where he says that this time the Muslim community should back the Aam Aadmi Party. We'll talk to the Jama Masjid United Forum, Yahya Bukhari. Bukhari Sahab, how do you really look at all the talk that is happening right now? We've had one announcement by Imam Bukhari where he says that the Muslims this time should vote instead for the Aam Aadmi Party, and immediately after that we had Arun Jaitley, the BJP leader, coming out and pointing this out very categorically, saying this is once again vote bank politics. How do you look at these developments coming back to back? See, once again, I believe that the same controversy is coming up which happened last time in 2014 during the parliament elections. Now, as far as his support for the Aam Aadmi Party is concerned, I think the voters of Delhi should question him that why he is supporting every time to the different political parties. What is the reason behind that? And of course, you know, after giving the statement in support for the Aam Aadmi Party, and immediately after that, Mr. Arun Jaitley came in front of the cameras, and whatever he said, so definitely, you know, हम लोग अगर खुल के कुछ ना भी कहें, but what is exactly what the kind of game is being playing behind that, everybody, you know, it's understandable for everyone. Are you alleging that there is something that's going on behind the scenes between, you know, referring to the timing of this statement? See, this statement, which has been given by Mr. Arun Jaitley, could have been given a day before also, or by Imam Bukhari Sahab, could have been given 2 or 3 days earlier also. Why? On the very last day, you know, when the next day the elections are going to be held. Number one, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, you know, मुझसे अगर आप पूछें तो पार्लियामेंट के इलेक्शंस में मैंने सपोर्ट आम आदमी पार्टी को किया था. तो बात वहीं अच्छी होती है कि जहां आप एक चीज पर कायम रहें. यू स्टिक टू वन थिंग, टू स्टिक टू वन डिसीजन. मेरा अपना जो डिसीजन था पहले भी वही था और मैं आज भी उसी पे स्टैंड करता हूं. क्या रीजंस होने चाहिए? देखिए, हर बार जब भी ये मसला आता है कि मुस्लिम्स को किधर वोट करना चाहिए, एक तो मुस्लिम्स को क्यों सबसे पहले रेफर किया जाता है? व्हाई शुड दे वोट एज वन कम्युनिटी? द सेकंड क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज व्हाट आर द बेसिस ऑन विच यू वांट द कम्युनिटी टू वोट? डू यू वांट देम टू वोट आइडियोलॉजिकली और डू यू वांट देम टू वोट looking at the real political situation? Last time it could be Congress party, this time it could be Aam Aadmi Party. Why is the ideology not being put forward? So this is a very important question as well as a tough question. See, मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है इस मुल्क में जिसको आराम से कोई भी मोल्ड कर लेता है. ये चीज़ मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए कि हम किसी के भी कहने पर बड़े आराम से वो उस तरफ का रुख कर लेते हैं. मुसलमानों के लिए अब ये सही वक्त है सोचने का. खुद सोचें, खुद फैसला करें. मेरे कहने पर या किसी भी XYZ के कहने पर फैसला ना करें. खुद फैसला लें कि कौन उनके लिए बेहतर हो सकता है. जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं पहले आम आदमी पार्टी के साथ सपोर्ट था. आज भी मैंने कोई सपोर्ट का ऐलान नहीं किया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहूंगा मुसलमानों को खास तौर से कि एक बार आजमा कर तो देखें, मौका दें. पहले भी उन्होंने उनको आजमाया, हमने भी आजमाया, नहीं उनको मौका मिला सही मानों में हुकूमत करने का. लेकिन ये सही वक्त है, उनको करना चाहिए. लेकिन अब आपका इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें कि योर ब्रदर इज ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर द आम आदमी पार्टी एंड यू आर ऑल्सो यू नो वॉकिंग ऑन द सेम ट्रैक, तो मेरा डिसीजन पहले भी वही था और आज भी वही है. वहां डिसीजन बदलते रहते हैं, you know, which is not good for the nation, and especially if we are talking about a particular community, the Muslim, it is not good for our community also. एक जगह कायम रहना चाहिए. फैसले बदलते रहने से इससे मुल्क का नुकसान है, अपना नुकसान है, हमारी कम्युनिटी का नुकसान है. नहीं, बार बार ये बात आ जाती है कि दुकान की तरह ट्रीट किया जाता है मुस्लिम वोटर को. पहले कहा जाता है कि इधर चले जाओ. कई बार इमाम बुखारी साहब ने अपनी पोजीशन चेंज करी है. बीजेपी के साथ भी 2002 में रहे, 2004 में रहे. ये भी बातें आगे भी रही कि समाजवादी पार्टी के साथ रहे. फिर अब कांग्रेस का भी ऐलान हुआ. इस तरह से जो मुस्लिम वोट को दुकान की तरह बेचा जाता है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अफसोसनाक बात है. ये बात आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है. लेकिन इसका सबसे बेहतर जवाब आप जिनके ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका रास्ता सियासी अलग है, मेरा सियासी रास्ता अलग है. फाइनली जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम की तरफ से अगर कहना चाहें कि व्हाट शुड बी द रियल पैरामीटर्स फॉर एनीबडी टू वोट, पीपल हु फॉलो यू, योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स फॉर देम टू वोट?
100% आम आदमी पार्टी। अब आप पार्टी का नाम लेंगे या फिर आप कहेंगे कि एक सर्टेन आइडियोलॉजी बेस्ड होना चाहिए? देखिए, आइडियोलॉजी बेस्ड का तो वक्त कहाँ है। अब तो उनको यही फौरन फैसला करना है कि वे उनका वोट जो है वो किस पार्टी को जाना चाहिए। अब तो इतना ही वक्त है ना, लेकिन पूरी आइडियोलॉजी पे बैठ के उसकी एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसके लिए वक्त नहीं है। अब तो वक्त सिर्फ इतना है कि फैसला ये कर लें कि किसको अपना वोट कास्ट करें। दैट्स ऑल। Yahya Bukhari from the campus of Jama Masjid here, making his position very clear, even though controversy continues over why Imam Bukhari had to really take a position at the very last moment, while the Aam Aadmi Party claims that this was some kind of a jugalbandi between the BJP as well as Imam Bukhari.